Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about nutrition in amoeba. Now we will do the nutrition in human beings. So our topic is nutrition in human beings. Let's start with that. The first is your introduction. For introduction, we just know what is a digestive system in human being. Now, the digestive system of human being contains two parts, that is alimentary canal and digestive glands. Now in class 7th you must have heard about the digestive system, that is alimentary canal, which starts from your esophagus and ends at anus. Okay, now this was your alimentary canal that you have studied how digestion takes place, and overview only over there. So here we will go in detail, that is what are the systems involved and how it takes place. The digestive system in human contains two parts, that is alimentary canal and digestive glands. So the parts of alimentary canal is your mouth and buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. These are the parts that we will study in detail. And the digestive glands contain salivary glands, liver, pancreas, gastric glands, intestinal glands. So this was just an introduction what we will have to study. Now the next part is parts of alimentary canal. That basically we have studied about two parts, alimentary canal and digestive glands. So first we will cover our topic is, that is mouth. Mouth is the uppermost opening of digestive system. You all know that your digestive system consists of mouth, buccal cavity, pharynx and esophagus, then your stomach, then your after stomach you have small intestine, large intestine, and then liver, pancreas, rectum, anus. Okay, so here the first part is your mouth. सो माउथ से क्या होता है, आपका ओपनिंग है अपर मोस्ट. क्यों? क्योंकि आप यहीं से फूड इनटेक करते हैं, इंजेशन यहीं से होता है. देन आफ्टरवर्ड्स माउथ में जाने के बाद आपका फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट करता है. सो माउथ इज द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट. स्लिट इज बेसिकली अ गेट है विथ बाउंडेड विथ सॉफ्ट मूवेबल लिप्स. ओके, ना आपको पता है आपके पास अपर जॉ एंड लोअर जॉ है. लोअर जॉ एंड अपर जॉ के बीच के ऊपर क्या है, कवरिंग आपकी लिप्स की है. सो ट्रांसवर्स स्लिट है जो जिसके पास आपके पास मूवेबल लिप्स है. द माउथ लीड्स टू अ बक्कल कैविटी. व्हाट इज योर बक्कल कैविटी? बेसिकली योर माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड salivary glands. So these contains your buccal cavity. Okay, the mouth leads to buccal cavity which contains upper and lower jaw. अपर एंड लोअर जो आप सबको पता है. अपर जो नोज की साइड है, लोअर जो आपकी टंग की साइड है. ओके, दिस इज योर अपर एंड लोअर जो प्रोवाइडेड विथ टीथ एंड टंग. नाउ यू कैन सी द बक्कल कैविटी and the tongue over there. So the upper portion where the buccal cavity is written, it is your upper jaw, and the where tongue is written, it is your lower jaw. Now next is your buccal cavity. Now in buccal cavity the first is your tongue. Tongue is a muscular sensory organ. ये आप सबको पता है that tongue is a muscular sensory organ. It does not contain any bones. Now the tongue contains 4 taste buds. बेसिकली आपने देखा होगा आपके टंग पर कुछ रफ सरफेसेस प्रेजेंट है. दीज रफ सरफेसेस जो आपको डॉट में दिख रहे हैं, पर्पल आपको रेड कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर योर पैपिले. इन पैपिले के अंदर आपके पास अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं. सो बेसिकली जो आपके पूरी टंग को रफ बना रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर पैपिले. पैपिले के अंदर आपके टेस्ट बड्स होते हैं. ओके, नाउ सो वी हैव 3 टेस्ट बड्स. बेसिकली हम हमेशा 4 ही पढ़ते हैं, दैट इज सोर, बिटर, स्वीट एंड सॉल्टी. ओके, सो सॉल्ट फर्स्ट इज योर बिटर जो आपके टंग के बैक साइड पे होता है बिल्कुल ही. एंड सोर जो आपके चीक्स की साइड होता है, मतलब आपकी जो चीक्स साइड जो टंग आती है वहाँ पर होता है. एंड सॉल्टी इज आपका फ्रंट में होता है. स्वीट एंड सॉल्टी आपका फ्रंट में होता है. नाउ अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग?
इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, ये आप सबको पता है, आप टंग के थ्रू ही बता दो दैट योर फूड इज़ टेस्टी, आपका फूड स्पाइसी है, नॉन स्पाइसी है, व्हाट इंग्रेडिएंट शुड बी एडेड इन इट टू मेक इट मोर डिलीशियस। ओके, सो आपने टेस्ट करके कहाँ से बताया, टंग से बताया। मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, अब आप क्या करते हो, फूड को मिक्स करते हो सलाइवा के साथ। व्हाट इज सलाइवा, जब आप कोई भी फूड खाते हो तो आपके माउथ में से कुछ वाटर सब्सटेंस सिक्रीट होता है, दैट वाटरी सब्सटेंस इज योर सलाइवा। ओके, सो जब ये सलाइवा आपके फूड के साथ मिक्स होता है तो आपके फूड को बहुत सॉफ्ट कर देता है वो। ओके, जब ये फूड के साथ मिक्स होगा सलाइवा, फूड को सॉफ्ट करेगा, वेट बनाएगा, एंड वेट बनाने से क्या होगा आपका एक्चुअली में कि आपका फूड इजीली स्वेलो हो जाएगा। सो व्हेन द फूड इज बीइंग मैस्टिकेटेड, बेसिक मैस्टिकेटेड मीन्स कि आपने टीथ की हेल्प से च्यू किया एंड च्यू करने के बाद सलाइवा उसके साथ मिक्स हो गया तो एक बोलस फॉर्म में आ गया। दिस बोलस फॉर्म इज नोन एज मैस्टिकेटेड फूड। ओके, एंड देन यू विल डू द स्वेलिंग ऑफ द फूड। टंग के फंक्शंस यही है आपके। नाउ नेक्स्ट वी हैव एन एक्सटेंडेड लर्निंग दैट नेक्स्ट पार्ट इज अवर टीथ। हमने बक्कल कैविटी में पढ़ा दैट वी हैव टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आएगा, तो हम धीरे धीरे मूव करेंगे उस टॉपिक पे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अवर टीथ। नाउ द टीथ इज बेसिकली आपको पता है कि आपके पास दोनों ही अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों में टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड वी नो दैट इन humans we have two sets of teeth, that is milk teeth and permanent teeth। ये भी आपने पढ़ा है। मिल्क टीथ 20 नंबर होते हैं। कैसे, इन टाइप्स ऑफ टीथ कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ओके, नाउ इंसीजर्स आपके फ्रंट 4 टीथ होते हैं जो अपर जॉ में दिखते हैं आपको। देन कैनाइन आपके पॉइंटेड टीथ होते हैं जो आपको टीयरिंग में हेल्प करते हैं। देन यू हैव प्री मोलर्स, देन यू हैव मोलर्स। ओके, नो जब आप मिल्क टीथ की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास मोलर्स नहीं होते। एट द एज ऑफ 12 यू डोंट हैव मोलर्स। सो बेसिकली जब आप बच्चे होते हैं मतलब आप अडल्ट नहीं हुए होते, आप 12 की एज तक होते हैं, तब तक आपके पास मोलर्स डेवलप नहीं हुए थे। बट जैसे ही आप 12 की एज में आते हैं तो आपके क्या होता है, टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं। मतलब एट द एज ऑफ 12 यू अटेंड ऑल द परमानेंट टीथ। ठीक है, 12 ईयर्स की जब आपके पास एज होती है तब तक आपके पास सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दैट मीन्स कि आपके मिल्क टीथ फेल कर गए, गिर गए, अब नए टीथ आए। रहेंगे 4 टाइप्स के टीथ ही, दैट इज इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स ही रहेंगे आपके। बट एक्चुअली में वहाँ पे मोलर्स डेवलप हो जाते हैं एंड दैट्स वाई इट बिकम्स 32 इन नंबर। नाउ यू कैन सी ओवर हियर permanent teeth in each jaw. You can see the diagram that we have 4 incisors used for biting. Then you have pointed teeth, that is your canine, जो आपके टीयरिंग में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली कार्निवोरस में प्रेजेंट होते हैं, ओमनिवोरस में। कैनाइन्स कभी भी आपका हर्बीवोरस में प्रेजेंट नहीं होते। रीज़न बीइंग दैट कि कैनाइन्स आपका क्या करते हैं, टीयर करते हैं। टीयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लैश, और फ्लैश हर्बीवोर्स नहीं खाते। दैट्स वाई आपका कैनाइन्स हर्बीवोर्स में एब्सेंट होते हैं। देन यू हैव प्री मोलर्स, देन यू हैव मोलर्स। ओके, सो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ बक्कल कैविटी दैट इट कंटेन्स माउथ, एंड माउथ में क्या रहा, टीथ एंड टंग, देन salivary glands also. You can see the number that in each jaw you have 4 incisors, 2 canine, 4 premolars and 6 molar. Okay, so you have a dental formula is 2 1 2 3. How? जब हम बेसिकली हमारे पास कितने हैं, हम 2 1 2 3 की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, हम 1/4 सेगमेंट लेते हैं। ओके, जब हम 1/4 सेगमेंट लेते हैं तो उसमें 2 1 2 3 आता है। आपके पास 2 इंसीजर्स आते हैं, 1 कैनाइन आता है, 2 प्रीमोलर्स आते हैं, 3 मोलर्स आते हैं। दैट इज योर डेंटल फॉर्मूला। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट माउथ, टंग, टीथ and the dental formula, that is our buccal cavity we have done. Now next we will do pharynx and esophagus. The first is your pharynx. अब आपकी बक्कल कैविटी जहाँ पे ओपन हो रही है, बक्कल कैविटी आपकी टंग के बाद
खत्म हो जाती है, तो टंग के बाद जो पोर्शन स्टार्ट हुआ दैट इज योर फार्नेक्स. तो बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू फार्नेक्स. यू कैन सी, जस्ट अ मिनट. बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू फार्नेक्स. अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज अ स्लाइवरी ग्लैंड. ओके, नाउ अब आपके माउथ के बाहर आपको एक ऑरेंज कलर की लाइंस दिख रही हैं दो. वन इज गोइंग फ्रॉम योर नोज एंड वन इज गोइंग फ्रॉम योर माउथ. ओके, सो जहाँ पे नोज और माउथ की कवरिंग इकट्ठे मर्ज हो रही है, जहाँ पे नोज और माउथ इकट्ठे आ रहे हैं दैट इज योर फार्नेक्स ओपनिंग. वहाँ पे आपका फार्नेक्स आता है. सी, हमने आपको एनलार्ज करके दिखाया. आपका अपर ऑरेंज इज योर नोज पाइप, नोज से जो पाइप आ रहा था आपका, एंड द लोअर वन जो लोअर ऑरेंज आ रहा है आपका नोज के नीचे वाला पाइप है दैट इज योर बक्कल कैविटी से आ रहा है. तो दोनों कहाँ पे आके मिल रहे हैं दैट इज एट फार्नेक्स. नाउ इट इज अ फनल शेप्ड, आपको दिख रहा है फनल शेप्ड पार्ट है वेयर फूड एंड एयर पैसेज क्रॉस ईच अदर. जहाँ पे फूड और एयर पैसेज मीन्स जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ही आपस में आके मिलती हैं. नाउ इफ वी सी क्लियरली तो फार्नेक्स हैज टू एपरेचर्स. मतलब फार्नेक्स के पास दो पार्ट्स हैं दैट इज ग्लॉटिस एंड ग्यूलेट. नाउ ग्लॉटिस क्या है, इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप. बेसिकली ग्लॉटिस एंड ग्यूलेट आपका एक तरह का कवरिंग है जो आपको प्रिवेंट करती है. मतलब जब आप बोलते हैं, हम कहते हैं कि हमें खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, हम हमेशा यही कहते हैं. सो दैट वाज ऑल बिकॉज कि जब आप खाना खाते वक्त बोलोगे तो आपका वॉइस बॉक्स ओपन हो जाएगा. बिकॉज बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, एयर चाहिए. हमें पता है कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती. ओके, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. सो अब जब आप बोलेंगे तो आपके माउथ से एयर जाएगी, नोज से एयर जाएगी, तो विंड पाइप ओपन हो जाएगा, वॉइस बॉक्स खुल जाएगा. जब ये वॉइस बॉक्स खुलेगा तो ग्लॉटिस की कवरिंग ओपन हो जाएगी एंड आप साइड बाय साइड फूड भी ईट कर रहे हैं. जब आप फूड ईट कर रहे हैं साइड बाय साइड, तब क्या होगा कि सारा खाना विंड पाइप में चला जाएगा बिकॉज आप बोल रहे हैं. तो बोलने पे क्या होगा, कवरिंग कहाँ आ जाएगी, विंड फूड पाइप पे आ जाएगी. ओके, कवरिंग जब फूड पाइप पे आई तो खाना फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में. और जब विंड पाइप में जाएगा तो आपको कफ होता है. ठीक है, इसलिए कहते हैं खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए. इसीलिए आपको कफ होता है, मतलब खांसी आती है जब आप खाना खाते वक्त बोलते हैं. इसलिए नेवर स्पीक व्हेन यू आर ईटिंग. ओके, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्लॉटिस की कवरिंग ओपन हो जाएगी एंड जब ग्लॉटिस की कवरिंग ओपन होगी तो आपका खाना डायरेक्टली फूड पाइप में आएगा. अब सपोज आप खाना खाते वक्त नहीं बोल रहे. ओके, सो आपकी जो कवरिंग है विंड पाइप की वो ग्लॉटिस कवर है विंड पाइप के ऊपर, तो आपका खाना फूड जो आपका फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाएगा. वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा. मीन्स तब वहाँ पे ग्यूलेट की कवरिंग उतर जाएगी, मतलब हट जाएगी. जैसे पिक्चर प्लांटिंग होता है ना कि ढक्कन खुलता है एंड ढक्कन बंद होता है, लिड ओपन होती है लिड बंद होती है. सेम वे में यहाँ पर है कि ग्यूलेट ओपन हो जाएगा एंड आपका खाना डायरेक्टली ईसोफेगस में जाएगा. सी, ग्यूलेट आ गया, दिस इज योर ईसोफेगस पाइप. ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि आपको खाना खाते वक्त बोलना क्यों नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज योर ईसोफेगस. अब ईसोफेगस क्या है, आपकी बेसिकली मस्कुलर ट्यूब है. आप देखिए फार्नेक्स के नीचे, फार्नेक्स का डायग्राम आपको याद हो गया ना. फार्नेक्स के नीचे आपके पास एक ऑरेंज कलर की पाइप जा रही है जो डायरेक्टली स्टमक से अटैच है. ओके, दिस लॉन्ग ट्यूब इज योर ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. इट इज अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. सी, नाउ इट पासिस थ्रू द नेक. आपका ऊपर सबसे पहले बक्कल कैविटी से पाइप आया, देन नोज से पाइप आया, दैट इज योर विंड पाइप. दोनों की मर्जिंग कहाँ हुई, फार्नेक्स को ही. और फार्नेक्स के बाद कहाँ पे आया, वो ईसोफेगस पे आ गया. सो इट पासिस थ्रू द नेक, नेक से पास कर रही है. एंड थॉरेक्स, थॉरेक्स आपका बेसिकली चेस्ट कैविटी है. ओके, सो चेस्ट कैविटी से पास कर रही है एंड ओपन इन स्टमक. कहाँ जाके खुल रही है, स्टमक में. Food passes down the esophagus by a peristaltic movement. See, the most important point over here is that we all know that the food travels from the food pipe. ठीक है, बट एक्चुअली में ईसोफेगस के पास कोई बोन्स नहीं है. ये सिर्फ एक वॉल है, मस्कुलर वॉल है, जहाँ पे ना तो कोई डाइजेशन होता है ना ही कोई बोन्स अवेलेबल है. तो फूड यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली
पास कर रहा है, और पास कहाँ से कर रहा है, बक्कल केविटी से लेके स्टमक में आ रहा है, ठीक है। सो द मेन कॉन्सेप्ट इज कि फूड यहाँ पे पास कैसे कर रहा है, ओके। सो दैट वी नीड टू लर्न कि फूड यहाँ पे पास कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है दैट द फूड पासिस डाउन द इसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? नाउ लिसन, यू हैव अ पाइप। आप सबके घर में एक पाइप होता है जिससे आप वाटरिंग द प्लांट करते हैं या अपनी कार वॉश करते हैं, ओके। नाउ जस्ट होल्ड द पाइप वेयर इट इज ओपन्स। सपो आपने पाइप को टैप में लगाया, पाइप को टैप में लगाने के बाद आपने क्या किया, जहाँ पे टैप ओपन कर रहा है, आपने टैप ओपन किया, वहाँ पे आप पाइप को दबा दीजिए, ओके। कोलैप्सिंग होगी पाइप की। जब आपने पाइप दबाया तो उससे क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट हो गया ऊपर भी और नीचे भी। मीन्स आपने जब पाइप को दबाया, आपने रिस्ट से दबाया, अपनी मुट्ठी से दबाया। जब अपने मुट्ठी से पाइप को दबाया तो आपका थंब ऊपर आया और लिटिल फिंगर सबसे नीचे है, ओके ना। तो थंब वाले पोर्शन पे और लिटिल फिंगर वाले पोर्शन पे दोनों ही जगह प्रेशर क्रिएट हो गया पाइप में, ओके ना। जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका थंब वाला पोर्शन है वहाँ पे भी प्रेशर है, लिटिल फिंगर वाले पोर्शन पे भी प्रेशर है, एंड अब आपका खाना नीचे नहीं जा रहा। मीन्स अब आपका पानी नीचे नहीं जा रहा, वाटर नीचे नहीं जा रहा, ओके। नाउ यू जस्ट ओपन द पाइप। आपने अपना रिस्ट खोल दिया, अपनी मुट्ठी खोली। मुट्ठी खोलने से क्या होगा कि प्रेशर रिलीज हो गया, एंड जब प्रेशर रिलीज होगा तो खाना एकदम से नीचे जाएगा, पानी एकदम से नीचे गया। तो सेम वे कि आपका फूड पाइप के अंदर भी यही पैटर्न होता है कि आपने फूड पाइप को कोलैप्स किया। कोलैप्स करने के बाद क्या होता है, आपका प्रेशर क्रिएट होता है ऊपर भी और नीचे भी। जब भी प्रेशर क्रिएट हो गया तो फूड पाइप एकदम से ओपन हो जाएगा, खाना नीचे जाएगा। देन अगेन प्रेशर क्रिएट होगा, बंद होगा फूड पाइप, प्रेशर क्रिएट हुआ, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद जब फूड पाइप ओपन होगा तो वापस फूड नीचे जाएगा। सो दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक movement. The rhythmic contraction and relaxation of muscles of alimentary canal to push the food. रिदमिक है ना, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पाइप पहले बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, पाइप बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, एंड ऐसे करते करते फूड कहाँ आ रहा है, आपका नीचे आ रहा है स्टमक में। सो दिस इज नोन एज योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Here in esophagus no digestion takes place. That's ये आपने पढ़ लिया फार्नेक्स एंड इसोफेगस। नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ थर्ड पार्ट इज अवर स्टमक, ओके। नाउ व्हाट इज अ स्टमक? स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले स्टमक का। या आपका स्टमक दिख गया आपको, इसोफेगस से कनेक्ट हो रहा है। नाउ इट इज अ थिक मस्कुलर एंड जे शेप्ड सैक। आपका जे शेप्ड है, कहीं कहीं पे यू शेप भी लिखा है, तो दोनों ही चीज़ सही है आपकी, डोंट वरी। ये आपका जे शेप्ड सैक है, मीन्स जे शेप की फॉर्म है। आप जैसे जे लिखते हैं, ऊपर एक लॉन्ग स्टिक एंड देन नीचे कर्व हो रहा है, सेम यहाँ पे कि ईसोफेगस की लॉन्ग पाइप एक लॉन्ग स्टिक है, देन आपको जो स्टमक का कर्व दिख रहा है दैट इज योर जे का कर्व। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जे शेप्ड सैक। इट इज लोकेटेड बिलो डायफ्रम। ना व्हाट इज डायफ्रम? जब आपने ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ा होगा क्लास 7th में आई थिंक, सो आपको टीचर ने बताया हुआ कि आपकी चेस्ट के नीचे जो एक वॉल है जो आपको नहीं दिख रही है, आप जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो आपकी एक वॉल एक्सपैंड कर रही है, रिलैक्स कर रही है। दैट वॉल इज योर डायफ्रम, दैट वॉल इज योर डायफ्रम। सो आपका डायफ्रम के नीचे स्टमक लोकेटेड है। इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। नाउ व्हाट इज एब्डोमेन? एब्डोमेन बेसिकली जो आपका रेक्टम से नीचे वाला पार्ट है वो है आपका। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक? लेट्स सी। बेसिकली आपने जो भी फूड ईट किया है वो फूड आपका स्टमक में गया, ओके। अब स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं आपके पास, दैट इज पार्ट्स इन द सेंस कि थ्री थिंग्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज योर गैस्ट्रिक ग्लैंड, second is your hydrochloric acid, and third is your mucus covering, okay। now अब हम इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। अब आपके स्टमक में तीनों पार्ट्स अवेलेबल है, बट बिफोर दैट जो फंक्शन स्लाइड पे है हम आपको वो बताते हैं पहले। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक churns the food into a fine paste called chyme।
ना चाइम नहीं बोलेंगे, काइम बोलेंगे, एच साइलेंट रहेगा यहाँ। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल मीन्स जब आपका फूड ईसोफेगस से स्टमक में एंटर करता है तो वहाँ पर जो स्टमक की मस्कुलर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, मतलब एक्सपैंड और रिलैक्स कर रही है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से फूड बिल्कुल चर्न हो जाता है, मतलब चर्न इज बिल्कुल स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम। Okay, now food is churned in stomach by the muscular activity of stomach wall. Now, see यहाँ पे लिखा है that the function is, आपके पास तीन पार्ट्स आ गए, that is gastric glands, mucus and hydrochloric acid. Now तीनों पार्ट्स का फंक्शन क्या है? जब आप स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हमने स्टमक का स्ट्रक्चर देखा था, स्टमक के स्ट्रक्चर में हमने देखा था एक जे शेप्ड कर्व था। जे शेप्ड कर्व इमेजिन करिए एंड देन यू कैन सी कि जो आउटर कवरिंग है स्टमक की उसके ऊपर एक म्यूकस है जो कि एक बेसिकली आपका सॉफ्ट कवरिंग है जो आपके स्टमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर जाने की परमिशन नहीं देता। ओके, रीज़न अभी बताती हूँ। नाउ एंड स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अवेलेबल हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। मीन्स स्टमक के ऊपर एक कवरिंग है दैट इज म्यूकस, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड स्टमक के वॉल्स के ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, अंदर स्टमक के अंदर सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो जब आपका स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है ताकि आपका फूड चर्न हो जाए, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, नाउ आपका म्यूकस भी अवेलेबल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अवेलेबल है। नाउ यहाँ पे लिखा है व्हेन एक्सेस HCl इज सिक्रेटेड इट कॉजेज एसिडिटी, बट व्हाई एंड हाउ? हमने बोला स्टमक ने गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट, स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्लास जो अब बोल दो प्लीज़ वो लिख लेना ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट किए विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, बट स्टमक के पास म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही चीज़ अवेलेबल है। ओके, जब म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों अवेलेबल तो दोनों का कोई फंक्शन तो होगा। अब फंक्शन क्या है? अब आपको पता है जब आप फूड इनटेक करते हैं, जब आप फूड खाते हैं तो उस फूड में क्या क्या अवेलेबल होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो स्टमक के अंदर आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो अब स्टमक में जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है? स्टमक में आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ फंक्शन तो होगा। क्या फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? दैट इट एक्टिवेट्स द एंजाइम। ये राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स द एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन, दैट इज पेप्सिनोजन which कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एंड देन दिस पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन। ये जो पेप्सिन आपको कन्वर्ट होके आया है ये प्रोटीन पे एक्ट करेगा, देन प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड। सी, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, बाय द एक्शन ऑफ pepsin enzyme, and this pepsin enzyme gets activated due to hydrochloric acid. So the inactive form of pepsin is pepsinogen. Okay, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? नाउ अब पेप्सिनोजन एक्टिव हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। क्लास में लाइन रिपीट कर रही हूँ, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन एंजाइम into pepsin. This pepsin acts on protein. The pepsin converts the protein into simpler form that is amino acid. Okay, now यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने बोला कि हमारे पास एक म्यूकस की कवरिंग भी है। अब म्यूकस की कवरिंग का फंक्शन यूज़ क्या है? अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? आपके स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट करेगा, मीन्स जला देगा उसको, और जलाएगा तो क्या होगा? सारा एसिड बाहर जाना स्टार्ट करेगा।
जब एसिड बाहर जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके बाकी ऑर्गन्स भी खराब होंगे। तो ये म्यूकस कवरिंग क्या करता है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर जाने से रोकता है। आपने सुना होगा किसी को पेट में अल्सर्स हो रहे हैं, ओके। स्टमक में अल्सर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में या आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है एंड उसकी वजह से आपके जो स्टमक की आउटर वॉल है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गए, उसमें होल्स हो गए। तो इन होल्स को हम स्टमक में अल्सर्स बोलते हैं, ओके। सो दिस इज बिकॉज कि आपकी बॉडी में मतलब आपके स्टमक में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है एंड म्यूकस अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। सो अब आपको हमने बोला कि एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहा है। सो जब भी एसिड ज़्यादा रिलीज होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। सो व्हेन एक्सेस ऑफ HCl इज सिक्रेटेड इट कॉजेज एसिडिटी। सो द यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि एग्जिट ऑफ फूड। अब आपका स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ, कुछ पार्ट रह गया, अब उसके बाद वो फूड कहाँ जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाय द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू फूड रेगुलेट होगा विच रिलीज इट इन अ स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइक जब ईसोफेगस से फूड स्टमक में आ रहा था तो वहाँ पे एक पायरोलिक स्फिंक्टर लगा हुआ था, ओके। अब सॉरी वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ था, बट जब आपका फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे पायरोलिक स्फिंक्टर लगा हुआ है जो फूड की एंट्री एग्जिट को रेगुलेट करे कि सारा फूड एकदम से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाए, ओके। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट प्लीज़ यहाँ तक जो भी कोई डाउट है आप मेरे से ज़रूर पूछेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।